According to the agenda today, we will first get started with what do you need to target for yourself. तो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट वी नीड टू नो what are the numbers which we need to target first. So if you see my screen right now, this is 2023's cutoff, 2024's cutoff, and here comes 2025's cutoff. Okay, now what you people need to figure out is last year और उससे पहले साल में कट ऑफ्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. यू सी 81, 80, 96, 96. ओके, हार्डली एनी डिफरेंस इन द कट ऑफ. वॉट गोज वॉबली वॉबली? वॉट गोज वॉबली वॉबली? द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. एंड ये बहुत कार्टूनिश लगेगा इफ आई टेल, बट दिस इज द रियलिटी दैट लास्ट ईयर पेपर ईजी आया था, उससे पहले साल पेपर हार्ड आया था, उससे पहले साल पेपर ईजी आया था. तो इस बार अकॉर्डिंग टू द सिंपल पैटर्न विच इज फाउंड इन द डोरेमोन वर्ल्ड, ऑफ कोर्स इजी हार्ड, इस बार हार्ड आएगा. बट हार्ड आएगा इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन ऑफ अस राइट नाउ. वाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज हार्ड आएगा तो लेसर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे एंड थिंग्स विल बी particularly easy, because last time हमारा score versus percentile prediction पूरा ऊपर नीचे हो गया था, because we were predicting according to the last year patterns, last to last year patterns, basically 2024 के pattern के हिसाब से हम चल रहे थे. तो basic like considering that fact we saw a massive change. Last year के अगर score percentile के cutoffs मैं आपको अपने screen पे दिखा रही हूँ, have a look over there. I think all of you can see it, right? Yeah. So just to clarify, ये 99 घुसते ही मिला था. There are mentees from CAGSAT who have scored 45 also. So वो भी आ जाएंगे शायद लाइव में. ओके, वो देखते हैं लाइव हमारी, तो वो आएंगे तो उनसे आपकी इंट्रोडक्शन करा देंगे. बट देन या 38.25 पे 99 was in. Okay. So sorry. Now if I go down, you will see 97, 32. 32 is important because 96 percentile was the cutoff for BM folks, और ये BM folks के लिए बहुत साल से constant रहा है. 95 for 2023, 96, 96. So this is the highest. and हमेशा याद रखना अपने targets please हमेशा ऊपर रखिए. Don't set yourself, like even if you are a female non-engineer looking for an HR program, even then don't target yourself around 80. मतलब यहाँ मैम आपने मुझे 80 दिखा दिया, और ये by the way ये ऑफिशियल है. ओके, सो यहाँ पर मैंने जाकर तुरंत 80 में देख लिया 20 रॉ स्कोर, लाइफ सेट है. लाइफ सेट नहीं है. इफ़ यू टारगेट 80 you might end up getting slightly less than that. and ये मैं नहीं कह रही, ये सारे एक्सेल के स्टूडेंट्स भी कहते हैं. I actually interviewed one of the recent students also. She also told the same thing, that you have to target more. ऐसे दिमाग में रख के नहीं जाना है एग्जाम में that we have to go ahead and just do, oh 20 is done now, negative marking thingy. So I'll also be explaining the negative mark thing for you. So that's the new thing in that. Okay, not new for this year, I'm talking about new compared to the other examinations. So you can clearly see the marks versus percentile on your screen right now, and you will get a clear cut idea कि आपको कितना टारगेट करके चलना है. तो आई विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट स्कोर्स टू कीप इन माइंड. जैसे हमने कहा 96 पे, व्हाट डू वी नीड इन 96? वी विल बी गोइंग फॉर 96 एज लास्ट ईयर्स परसेंटाइल टू बी 32 का रॉ स्कोर. ओके, दैट्स द कट ऑफ. एंड सी द हाइएस्ट कट ऑफ फॉर QA goes in BM engineer male QA right here, 88. Okay, 88 is the highest, and in QA to get an 88 percentile you somewhere need around 10 marks. Okay, last year के score versus percentile के हिसाब से approximately 10 marks, यानी double digit में score लाना ही है. अगर मैं VALR की बात करूँ तो where does the highest percentile go? HRM male engineer as well as non-engineer, 90 percentile का VARC का कट ऑफ. Let's scroll down and have a look at VARC. Okay, Vidhan, I'll take all the queries at the end. Okay, just wait for 20 more minutes. Coming to verbal ability, you see that if you need a 90 percentile to clear the cutoff,
you somewhere need to be around 10 to 11 marks, say for 11 marks. Again double digit में हमारे marks जा रहे हैं, तो अभी से mock देते time your focus should be to get a minimum of double digits in all the sections. Coming to DM, look at DM's highest. Where do you see the highest for DM का cutoff? 87. Yes, and 87 is again for the HRM guys, both engineer non-engineer male. मेल होना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, बट या 87. एंड फॉर DM 87 वी वुड गेट अ क्लोज टू 87 स्कोर अराउंड 10-11 बीच में. ओके, सो टेक द हायर साइड 11. अगेन यू सी 10, 11, 11, दैट इज द सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. तो आप अभी से जो भी मॉक्स देना स्टार्ट करोगे, योर टारगेट शुड बी टू गो इन द डबल डिजिट्स फॉर श्योर. यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है. We will start our preparation with this agenda. Okay, moving forward, now that we know the cutoffs and all, the score versus percentile, let's get into understanding the most important topics. Okay, so this is the weightage and I have linked all the years throughout. Okay, 2020 से लेकर 2025 तक. This is a major screen which you need to take a screenshot of. आप कहोगे तो I will obviously give you. Yes, of course, 42 plus का percentile is, 42 का raw score please ध्यान में लेके चलो. 40 plus should be a target, okay, because last year भी 40 plus वालों को 99 point some percentile आया था, so that was safer obviously. And paper easy था या ज़्यादा लोगों ने पढ़ाई कर ली थी, that is something debatable, but definitely 40 plus is what should be in your done. Okay, 40 plus marks. Yes, everyone is commenting 40 plus marks is definitely required. Now look at the screen right now guys. QA is the major problem for most of the people around, and इसीलिए हम लोग सबसे पहले QA से ही स्टार्ट करेंगे. वो कहते हैं ना कि सबसे पहले उस चीज़ से स्टार्ट कीजिए जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज इफ़ वी वर्क आउट ऑन द थिंग्स विच वी आर काइंड ऑफ अफ्रेड ऑफ, यू विल सी दैट you will be habituated, with working with it. And see, थोड़ा सा बॉलीवुड डायलॉग है, बट it's really true that it takes 21 days to build up a habit. आपने वेब सीरीज वगैरह में भी सुना होगा, राइट? एंड दिस इज़ नॉट फॉल्स एक्चुअली, दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन. सो 21 days में क्या मैथ्स अच्छा हो जाएगा? अच्छा मे बी ना हो, but I can definitely say that if you rigorously follow a schedule and sit and do the math, you will improve for sure. आपको खुद में 7, 8, 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिल ही जाएगा, and that is more than enough. Because see, when it comes to ZAT, right, when it comes to XLRI, if you guys are really having XLRI as your dream college right now in mind, then let me clearly tell you that XLRI always and always rewards smart work. It always rewards the smart people. So there are people sitting in the campus right there who have got close to 90, 91, 92 percentile also, but have very comfortably cleared the GDPI. That means they are not looking for the candidates who are only, intelligent nerds. They are looking for someone who have the capability of being a good manager, a good leader in future. तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो या उस पर आप अभी भी काम कर सकते हो, देन योर PI इज़ द मेजर फैक्टर डिसाइडिंग वेदर यू विल बी एन एक्सेलर और नॉट. सो दिस इज़ वन थिंग विच यू ऑल शुड कीप इन माइंड कि ऑफकोर्स पेपर तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट साथ साथ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे भी बहुत काम करना है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मेजर reasons why a person gets selected or gets rejected. Because this is not to demotivate you, but there are candidates around who have scored a 99 percentile and yet not get selected in both the BM and the HRM program. It's not just for Excel. That same candidate did not get selected in IIM's interviews also. He also performed well in that. The reason being clear: not good at communication skills, not good at presenting what you already know. ओके, एज अ मैनेजर आपको काम ज़्यादा खुद से खाली करना नहीं है. यू हैव टू मेक अदर्स डू द वर्क, यू आर अकाउंटेबल फॉर देम. तो इसीलिए सोच के रखिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट आंचल, थैंक यू एंड हाई. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रोग्रेशन इन सीरीज. लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, and that is something which is very new. That's why I kept it at the front only. कि generally हम बहुत questions देखते थे, जैसे 3 questions, एक question. Last year for some reason they did not give any series question, but
लास्ट ईयर एक और चैप्टर में बहुत डिक्रीज हुआ था, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस. एरिथमेटिक वाले लोग थोड़े से परेशान हो गए थे दैट हमने इतनी मेहनत की इस चैप्टर में, एंड क्योंकि लास्ट ईयर 7 क्वेश्चंस आए थे, 7 से सीधा 3 क्वेश्चंस पे उतर गए. कमिंग टू ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, you see this, and why am I so serious on this? Because half of my mentees who are talking to me in one-to-one sessions on TopMate are clearly telling this to me that ज्योमेट्री हमने नहीं पढ़ी है या ज्योमेट्री हमारी अच्छी नहीं है. गाइस, दैट लास्ट ईयर पागल हो गए थे वो लोग ज्योमेट्री के पीछे. दे लिटरली गेव 6 legit प्रॉपर ज्योमेट्री क्वेश्चंस, एंड व्हेन आई से प्रॉपर, लिटरली प्रॉपर क्वेश्चंस. आई मीन हम नहीं कह सकते कि इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा भी था, ये भी था. अरे इक्वेशन सॉल्व करने वाला अलजेब्रा तो होगा ही, बट द थिंग इज 6 questions guys. And let me tell you this thing very well, that ZAT is famous for the fact कि mensuration के questions formula based होते हैं. ठीक है, that means अगर आप formulas याद कर लो या फिर formula से related 50 questions कर लो, तो you will be in a good position to at least make educated guesses and eliminate 2 options, 3 options. तो वो आपके लिए easy पड़ता है. तो इफ़ यू वॉन्ट, डेफिनेटली ट्राई गिविंग अ ट्राई टू ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से मत छोड़ना, दैट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रियाशा. डोंट लीव एनी चैप्टर फुल्ली, एटलीस्ट डू द एग्जाम्पल्स और द LOD1 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आपको पूछूं तो आपको उस चैप्टर के बारे में ना पता हो या उस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला ना पता हो, राइट? तो वो बेसिक फॉर्मूला लेवल वाली अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ों से रखनी है, बिकॉज एज आई सेड, बी स्मार्ट, लुक फॉर योर 1 mark. अब चाहे वो 1 mark बहुत क्रिएटिवली डिजाइंड एरिथमेटिक क्वेश्चन से आए या बहुत सिंपली पुट नॉन एल्जेब्रा या फिर मॉडर्न मैथ के क्वेश्चन से आए, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स, 1 mark matters. And I am not even kidding. Look at the score versus percentile, you will have a clear cut picture. एक मार्क से कितना परसेंटाइल में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है. दिस इज नॉट अ जोक. सो देयरफॉर ट्राई टू सिलेक्ट द राइट क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन एंड डोंट रन बिहाइंड मैंने आज क्या अच्छे से किया है, राइट? तो डेफिनेटली go for it. I mean, go for the geometry sessions. Taran, I have a lot of videos on geometry. You need to watch them. I'll send you the link, okay? Just let me finish this. तब मैं आपको सारे links भेज देती हूँ geometry के. Look, here, by the way, you people should refer to the QRS, okay? This is called the quick revision sheet, जहाँ पे आपको बस topic का नाम search करना है and you will get the video of that. So I'll send that link to you right away. Now come down to profit and loss and interest. ये भी drastic decrease. जहाँ 2024 में 5 क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, everyone was fully prepared कि यार हम अच्छे से इसको करके जाएंगे. Again a chapter from arithmetic, profit and loss गया. Only 1 question of profit and loss. Time, speed, distance. There was no direct question. There were indirect questions, but no direct question. This was a matter of discussion also कि ऐसा कैसे हो गया. But direct questions नहीं थे, indirect questions फिर भी थे. Time and work पे 1 question आया था. Data sufficiency पे कोई questions नहीं आए थे. Very different to see. Probability 1 question. Okay, my like modern maths, if you have seen my videos before, you must be knowing that. Gitika, I can see your message right now. So Gitika, since you have joined right now, I'll just tell you, let me complete my thing in 10 minutes. I'll complete this PPT and then we will be open for Q&A, okay? So that we don't break the flow in the middle. Just stay back for 15 minutes. Let's continue. So over here, we have number system. Okay, number system has shown its consistency for the past 2 years now with 2 questions. That means, देखो मैं फोर्स तो किसी को नहीं करूँगी क्योंकि नंबर सिस्टम मुझे खुद को पसंद नहीं था, लेकिन इफ़ यू स्टिल फाइंड योर सेल्फ फीलिंग दैट इट्स डूएबल, डू इट. अदरवाइज as I told you, just basics in the center part, not more than that, okay? Come down to logs, surds and indices. एक क्वेश्चन देख रहे हो, कंसिस्टेंसी आती तो है, लास्ट 2 ईयर्स से आ ही रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है, ओके? इनइक्वालिटीज़ लास्ट 2 ईयर्स में बिल्कुल नहीं देखने को मिली है, बट जनरली पिछले 2 साल में बहुत आ रहा था. आई मीन लास्ट ईयर काफ़ी आता था, एक क्वेश्चन हमेशा आता था. सडनली अ चेंज ऑफ माइंड. DI के 9 क्वेश्चन थे, 3 सेट्स थे बेसिकली, एंड देन पजल में 3 क्वेश्चंस. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पजल्स? नाउ दिस इज वेयर दे इंक्लूडेड अ बिट ऑफ that kind of puzzle questions, in the sense we have classified it as puzzle, but that basically means a kind of arithmetic knowledge only, क्योंकि उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह निकालना था.
So that was classified under puzzles, okay. And Venn diagram, last year we couldn't see one, but then last to last year there was one. I predict this year also we would have one. So you can get an idea or a hang of how this is going to be. Hardik, yes, we'll be talking about the DI as well. Calculative DI तो हमेशा से रहा है, okay. It has always been a calculative DI. Last year calculator introduce हुआ है ZAT में, उससे पहले ZAT में calculators नहीं थे, तो numbers were user friendly. User friendly means easily cancelable, है ना. जैसे 22/7 दिया है तो उसके बाद आपका रेडियस आपको 7 या 14 ऐसा कुछ देते थे, so that it can get cancelled. बट जब से कैलकुलेटर दिया, दैट इज़ लास्ट ईयर, दे हैव गॉन वाइल्ड ओवर नंबर्स. तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं. दे नो दैट यू कैन डेफिनेटली डिवाइड इट एंड गेट द आंसर इन डेसिमल, सो दे डोंट केयर लिटरली. सो या कैलकुलेटिव हमेशा से DI रहता है ZAT का, ओके. बट द थिंग इज इट्स नॉट दैट LR ओरिएंटेड, मतलब एकदम हैवीली LR ओरिएंटेड नहीं है, जस्ट लाइक कैट. बट हाँ, nowadays you see tinges of LR here and there, like maybe a bit of probability add करके how many combinations you can make, questions like that, okay. तो yes Neil, we do have calculators. So coming down to verbal now, quickly देखो मेरे पास DM के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, बट हाँ DM के लिए एक टिप है जो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी. So let's start with verbal and logical ability. उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, since so many of you are watching this, can you people please like the session as well? Absolutely free, you know that, but that really helps me, so do that. Okay, come back to RCs now. How many RCs? 12 RCs, of course, okay. Again, 3 sets, 4 sets. Poem based passage, 2 questions for sure. क्या वो 2 क्वेश्चन हमें डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू एनी ZAT एस्पिरेंट्स हेड. हमेशा से इट हैज़ बीन अ क्वेश्चन, एंड इट्स अ वैलिड क्वेश्चन ऑल्सो. मतलब 2 क्वेश्चन के लिए क्या मैं अपनी एक्यूरेसी को स्टेक पे डालूँ? इज दैट रियली वर्थ इट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज yes. Why yes? Because poem based RCs are not hard, okay. They just want to know whether you get the figurative meaning of it, something which is between the lines. Literal meaning नहीं. अगर मैं आपको flower बुला रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक flower हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा beautiful हो, right? बस उसी तरह से सारे पोएम बेस्ड RCs को हिट करना है. एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो है ऑप्शन एलिमिनेशन, विच हेल्प्स एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ अटेम्प्टिंग पोएम बेस्ड RCs. तो देखो, अगर आप मुझे एक क्वेश्चन देते हो कि प्रियाशा टेल मी वन थिंग, do you really would go for a RC which is not of my genre? Let's say I hate history and these people are giving me historical RCs. Should I attempt those versus should I attempt the poem based RCs? So my answer would be poem based RCs, because poem based RCs का क्या है, देखो समझना हार्ड है, आई अंडरस्टैंड, एक बार में समझ में नहीं आता है. बट अगर आप ऑप्शंस के साथ वेरीफाई करो तो चीज़ें आसान हो सकती है. और ये डिसीजन आपको आज नहीं लेना है. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी गाइज, राइट. ये डिसीजन आज नहीं लेना है, ये डिसीजन आपको अभी से 15 दिन बाद लेना है, और मे बी 20 दिन बाद लेना है, वेर यू विल बी डिसाइडिंग कि मुझे ये पोएम उठाना है या नहीं. इनफैक्ट एग्जाम इज़ द रियल डे व्हेन यू विल बी डिसाइडिंग कि ये पोएम उठाना है कि नहीं, क्योंकि वो पोएम पे डिपेंड करता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. बट हाँ, इसीलिए जब आपको अपनी डिसीजन को लास्ट डे तक लेके जाना है, इन दैट केस यू नीड टू नो दिस कि उसके लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए. तो इसीलिए पोएम बेस्ड RC प्रैक्टिस ज़रूर करना. एंड बेस्ड ऑन द लो वेटेज ऑफ पोएम बेस्ड RCs, आई एम कमिंग अप विद ग्रुप क्लासेस ऑन पोएम बेस्ड RCs every Thursday you will be having like 5 Thursdays, 5 sessions only, okay. I've linked it in the description also. If you don't find it, let me know, मैं send कर दूँगी अभी. तो उसमें क्या करेंगे, हम बस सीखेंगे कि करते कैसे हैं. And once you learn and understand, we'll also have a YT live recently on poem based RC, so you can join that one also, okay, same time, I think 2 days later. So वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अप्रोच कैसे करते हैं. तो एक बार आपकी स्किल सेट बन जाएगी, फिर उसको अप्रोच करना है या अटेम्प्ट करना है या नहीं, दैट्स कम्प्लीटली गोइंग टू बी योर चॉइस ऑन द D-Day. बट ऐसा नहीं होना चाहिए दैट you saw a easy poem right in front of you but couldn't attempt it or couldn't get the right accuracy there because you did not know the right rules, okay. So definitely practice it, okay. Coming to fill in the blanks, of course it always stays critical reasoning. You must have heard me so many times saying this. मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए. The one common tip from Priyasha in the verbal section is always critical reasoning,
always and always critical reasoning. No worries, Finista, we'll talk about it. Just give me 10 more minutes, okay? Let me complete this. Critical reasoning is something which is the backbone of verbal ability section, and I'm not even kidding. वर्बल एबिलिटी में मार्क्स उठाने हैं तो सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग पे काम करना है. सी, I really don't like the fact many educators on YouTube and other coaching institutes do this. They teach you editorials or they teach you reading comprehensions by going line by line, literally line by line पढ़ाकर एक एक लाइन समझाते हैं जिसको आप अप्रिशिएट करते हो. दैट इज नॉट अ थिंग विच शुड बी अप्रिशिएटेड. आई टेल यू व्हाई. Because when the RCs are given to you in XAT, you know XAT RCs are pretty famous to be hectic, to be very verbose, to be something which has vocabulary of some high level English book which we definitely don't use in our daily language. All of this is true. All of this is true. But the fact that you need to understand every single line of the RC, it's absolutely false, guys. Absolute BS. कभी भी किसी भी आरसी को एक एक लाइन समझना नहीं है. ना तो आपके पास इतना टाइम है एग्ज़ाम में ये करने के लिए, और ना ही आपकी स्किल सेट उतनी अच्छी मानी जाएगी अगर आप एक एक लाइन समझ के आंसर करने जा रहे हो. तो when will you be considered to be, worthy enough? When you can read 3 to 4 lines or a chunk together and then jot down or make a mental note of what you understood out of it. Because that's exactly what managers do in real life. कभी सोचा है why exactly all the entrance examinations, or let's say all the MBA entrance examinations specifically, have RCs in common? Because that's the real skill set every manager needs. What is that real skill set? That real skill set is a person comes in front of you, talks anything he wants to talk about in which you are least interested, and you have to understand and get the gist of his entire conversation. हो सकता है वो गुस्से में आपको कुछ ऐसा भी बोल दे अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ भी ना आए, बट आपको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा उसकी टोन से कि मुझे गाली दे के गया है. राइट? सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इन द आरसीज एज वेल. ऑथर आएगा, अपने पसंद का कुछ भी बोल के जाएगा. यू ओनली हैव टू रीड दोज 4-5 लाइन्स, एंड आई मीन per 4-5 lines, understand the gist of that, understand what he is trying to convey, positive, negative, neutral tone. Is he talking about something? Is he describing something? Is he talking about an incident? Has it any relationship with the previous 4 lines you read? And that's it. और आपको पता है सबसे बड़ी बात, that XAT के RCs में जब आपको hard words देखने को मिलते हैं, that's not something you should be, afraid of. Because वो जानबूझ के ऐसे words देते हैं ताकि जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट है, जैसे आपके खुद के पेरेंट्स ले लो, आपके खुद के पेरेंट्स आर नॉन सीरियस कैंडिडेट्स. ओके, दे जस्ट नो कि मेरा बच्चा XAT का पेपर लिखने वाला है, XAT का इंग्लिश बहुत हार्ड होता है, एवरीथिंग दे नो, राइट? सो उन जैसे कैंडिडेट्स या उन जैसे लोगों के लिए जब वो XAT का आरसी पढ़ते थे, लाइक ये कौन सा वर्ड है, राइट? ऑब्वियस है. एंड फिर उसके ऊपर वो अपनी पूरी जजमेंट बना लेते हैं कि XAT का आरसी बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकता बच्चा सॉल्व कर गया तो बहुत इंटेलिजेंट है. वैसे मैं भी फ्लेक्स कर लेती हूँ इस बात पे, क्या बड़ी बात है, राइट? बट अब वीडियो पे बोल रहे हो तो सबको पता चल ही जाएगा दैट इसमें फ्लेक्स करने वाली कोई बात है नहीं. वैसे यू रीड 2 लाइन्स अबव इट, यू रीड 2 लाइन्स आफ्टर इट, यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड. कभी भी आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें एक हार्ड वर्ड दे के आपको एग्जैक्टली उसका मीनिंग पूछ लिया है. इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आए हैं कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ना कि इसका क्या मीनिंग है. तो इसीलिए आपको समझना है कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर है टू ऑल दोज हु डू नॉट गेट enough accuracy in their verbal section. You need to take a chill pill because this paper is easy. The only thing is that you need to approach it differently. And अगर सचमुच किसी भी टॉपिक में इन डेप्थ जाने का आपको बहुत मन है ना, then go into the depth of critical reasoning. Go into the depth of critical reasoning and first understand in 2-3 days what is the difference between conclusion, inference, assumption, course of action. मेरे खुद के 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोज़ बने हुए हैं guys, just go and check them out. You will get a clear cut idea. एंड उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत कुछ है. मेगा ड्राइव लिंक है, GMAT का रिसोर्स है,
you know, you have GMAT Bible, so many things to practice from. Just ask me na, I'll give you every resource you need. Okay, but practice. आपके एंड से क्या रिक्वायर्ड है? आपके एंड से प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. ओके, तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो. एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी वगैरह के क्वेश्चंस हार्डली देखने को मिलते हैं आजकल, एनालॉजी के क्वेश्चंस. ये एक फाइनल चीज़ है जिसके बाद आई विल बी ओपन फॉर द Q&A. ओके, यस यस, ब्ला ब्ला ब्ला, हाउ टू डू मॉक एनालिसिस, वी विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी. ओके, बट हाँ, उससे पहले ज़रूरी है that you guys just have a look. ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. These are like colleges, 173 colleges now, okay, who are taking the ZAT scores. Okay, good bad सारे चीज़ें इसमें alphabetically arranged है, तो आप उसको उस हिसाब से रेफ़र कर सकते हो. एंड जो भी आपको लगता है आपको फिल करना चाहिए, you can fill those forms as well. I'll be sharing this with you, so nothing to worry about. Okay, and कभी भी आप स्टॉप करके इसे देख भी सकते हो एज अ वीडियो में. ये मैं समझाना नहीं चाहती. अब मैं आपको एक एजेंडा देना चाहती हूँ. द लास्ट 5 minutes ऑफ व्हेन आई विल बी टॉकिंग, एंड दिस विल बी प्योर गोल्ड, सो लिसन टू मी केयरफुली. हाउ आर यू गोइंग टू डिवाइड योर डे? आज से सीरियसली जो लोग ज़ैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाले हो, जस्ट राइट अ मी, ओके, सो दैट आई कैन सी इन द चैट बॉक्स. Okay, yes, you want the ZAT strategy. I am going to talk about the ZAT strategy right now. So write a me if you are really serious and you promise me that you would be staying disciplined and focused for the next 30 days. Very good, Hardik, blah blah, Starlight, Achal, very good, Harish, okay, Janshi, Aniket, thank you so much for writing this. I need this and no shame in writing this. आपको क्या डर लग रहा है कि वो जो बाकी के 44 लोग हैं जो देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? They don't even know you. Okay, so try to understand this thing. You all can do it, but where is the problem? The problem is the lack of dedication, the lack of focus. अभी मैंने आपको बताया, आपने अगर वीडियो देखी है मेरी आज 10 minutes वाली, ठीक है, तो उसमें मैंने रिसोर्सेज के लिंक भी दे रखे हैं. ठीक है, आपको RM टाइप करना है, मैंने सबको भेज दिया. आपको कमेंट्स में जाके ऐसे ही मिल जाएगा अभी. ठीक है, डेली रिचुअल्स के लिए काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं. अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो जाके कर देना. आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ़ पीपल हु वांट डेली रिचुअल्स. तो मेरा एक सेट टारगेट है, अगर वो टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं खुद से डेली रिचुअल्स के क्वेश्चंस बनाकर आपको दूंगी. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसको सॉल्व करना है. सोल्यूशंस भी उसके नीचे दे दूंगी फॉर योर ईज. ओके, सो I will provide you everything. I'll providing you classes, YT live sessions, group classes, 1-to-1 सेशंस, मेंटरशिप, सब कुछ मिल रही है. कहाँ लैग कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ फोकस में. गुड इवनिंग चिराग. तो वो फोकस कहाँ से आएगा? वो फोकस आएगा टू गेट योर सेल्फ विद अ क्लियर हेड सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और द मिरर एंड टॉकिंग टू योर सेल्फ फॉर 2 minutes. जस्ट 2 minute में अपने आप को ये बताओ कि अगर ये 30 days में मेहनत कर लेता हूँ और एक डिसेंट स्कोर, यू नो, ये रॉ स्कोर देखो आपके सामने है, ये डिसेंट स्कोर मैं अगर मेंटेन कर लेता हूँ, देन आई वुड बी एबल टू गेट अ गुड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. इन 173 में से सारे कॉलेजेस के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा. मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं किस कॉलेज को चूज़ करूँ. एंड इसके बाद जो लोग हैं ना, बड़े बड़े फाउंडर्स जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, MBA ये है वो है, उनकी खुद की कंपनी में आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे एट अ मैनेजरियल और अ क्लासिक C-suite लेवल रोल, द फर्स्ट थिंग दे वुड नीड इज़ एन MBA एंड यू डोंट हैव दैट. ओके, अगर आप उनकी बात सुन लेते हो तो उनकी बातें मत सुनो. वो कंट्रोवर्सी के लिए बोलते हैं ताकि लोग बाद में जाके उनकी पॉडकास्ट देखें और एग्जैक्टली उस मिनट पे जाके देखें कि क्या बात हुई थी, क्यों ये सेंटेंस बोला. तो दैट्स मार्केटिंग गिमिक एंड दे हैव डन इट गुड. बट यू डोंट गेट स्वेड बाय दैट. आई अंडरस्टैंड इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है, आई अंडरस्टैंड थिंग्स, बट आई ऑल्सो आई एम वेरी क्लियर ऑफ द फैक्ट कि यार दिस कैन गिव यू अ मेजर लीप इन योर करियर. अगर आप ऑलरेडी एक 25 LPA से ऊपर की जॉब में हो तो मे बी नॉट, मे बी देन इट वुड नॉट बी अ वेरी ह्यूज जंप फॉर यू. 10 LPA का जंप हो सकता है ऑन एन एवरेज, ज़्यादा हो सकता है अगर आप टॉप 5% में हो बैच के, या फिर आपने GDPI में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आपके इंटरव्यूज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऑफकोर्स आपको 1 crore का पैकेज भी लग सकता है, राइट. बट द पॉइंट टू नोटिस हियर इज़ कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है इस 30 days की मेहनत में. और अगर ये 30 days की मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा? या तो फिर से 365 days की मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ यू आर अपेयरिंग नेक्स्ट ईयर, और या तो कुछ और प्लान भी उठाना होगा.
तो राइट नाउ प्लान भी रखना इज़ नॉट फॉर लूजर्स. डेफिनेटली थिंक अबाउट इट सो दैट यू आर क्लियर इन योर माइंड कि अगर नहीं हुआ तो हमें पैनिक मोड में नहीं जाना है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव योर सेल्फ हाई गोल्स, राइट? सो प्लीज़ 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 मेक इट अ पॉइंट एवरीवन दैट किसी भी कीमत पर आप लोग पीछे नहीं हटोगे. डेली रिचुअल्स की जो टेबल बनाई थी ना, उसको कुछ भी हो जाए फॉलो करोगे ही करोगे. अगर जाकर अभी तक 30 डेज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेंगे. पूरे वाईटी का 1 महीने का स्केड्यूल मिलेगा. ओके, एवरी सिंगल डिटेल इज ऑन दैट वीडियो. यू डोंट हैव टू विजिट एनी अदर प्लेस. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे वो हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया. उसके लिए अलग से भी वीडियो है, उसकी लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड इज़ कि देखो, इस 30 डेज़ में हम इवन डी रेल तो छोड़ो, बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, स्लीप वेल, टेक इनफ रेस्ट एंड प्रैक्टिस. बट हाँ, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपके अराउंड जिसे आप इग्नोर कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज़ डू दैट. बिकॉज कभी भी अच्छा स्कोर लाना इज़ नॉट गोइंग टू बी वेस्ट. ओके, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू पीपल. सो विद दिस पॉइंट, promise me right now that I'll be doing it. And now onwards, today onwards, we will get started with the preparation. आज एकदम अच्छे से सोने जाओ, ठीक है? कल सुबह डेली रिचुअल्स आपके पास होगा, आप उसको फॉलो करना. 30 डेज़ के प्लानर के हिसाब से जो प्राइमरी टॉपिक है उसको फॉलो कीजिएगा. एंड एवरी डे टेस्ट टेकिंग, ठीक है? तो आई एम कमिंग बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड विद. एंड फिर ये निखिल कामत की वजह से इधर उधर जाना पड़ गया मुझे. तो कमिंग बैक टू what I wanted to start with. Number 1, your day should be divided into 3 parts. Number 1 should be a primary topic day. मतलब जो भी प्राइमरी टॉपिक आपको एक दिन में पढ़ना है उसको आप 2-3 घंटे की स्लॉट में पढ़िए. प्लीज़ प्रैक्टिस सिटिंग फॉर 3+ hours. ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस सिटिंग फॉर 3+ hours. चाहे इस चेयर में बैठ के स्क्रोल ही कर लो, लेकिन चेयर पे ही बैठे रहो, चेयर से उठना नहीं है. ऑल्सो प्रैक्टिस अवॉइडिंग बायो ब्रेक्स ड्यूरिंग द लाइक योर एग्ज़ाम टाइम. बिकॉज जो भी बोल लो 5-10 मिनट वेस्ट हो जाता है उस चक्कर में. तो ट्राई टू अवॉइड इट. ऑफकोर्स इफ इट्स एन एमरजेंसी यू कांट, बट अवॉइड, ट्राई. ओके, सेकेंड थिंग, एवरी सिंगल डे टेस्ट. तो जिस दिन फुल मॉक्स लेने हैं वो तो मैंने लिख ही दिया था प्लानर में. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू माई प्रीवियस लास्ट वीडियो ऑफ 30 डेज प्लानर एंड गेट दैट. एंड हर दिन या तो सेक्शनल या तो टॉपिक वाइज टेस्ट. जिस दिन बिल्कुल मूड नहीं करे ना, please write a 5 question test only, but write it. okay, and last but not the least, daily rituals. कुछ भी हो जाए, मैं एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं बेयर करने वाली. अगर आप मुझे आके बोलते हो कि आज मैंने डेली रिचुअल्स भी नहीं किया, तो मैं तो फिर आपको हेल्प नहीं करूँगी. क्योंकि डेली रिचुअल्स एक छोटी सी प्रैक्टिस है विच आई वॉन्ट यू टू डू एवरी सिंगल डे. 1 DM सेट, 1 LR DI सेट, 1 RC, 5 VA का क्वेश्चंस, 5 पॉइंट क्वेश्चंस एंड सम करंट अफेयर्स एंड GK. okay, that's all I want you to do. Current affairs and GK every day के लिए I'll be giving you the notes. okay, you will be reading it from there on an everyday basis. अगर आपके पास InShots वगैरह के ऐप वगैरह है, you can refer to that also for everyday notes. And you can blindly go by the YT lives of Priyasha Das, because proud enough to say this, last year 8+ questions in the paper from the PDF which I shared with you people last year. And last to last year भी 5 to 6 questions आए थे. If you don't believe me, go and watch any previous year live session and you will see people commenting them. मैंने उनको खुद बोला था कि लिख दो वहाँ पर भी, ठीक है? तो इसमें तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि चलेगा. ओनली गोइंग थ्रू माई YTs वुड बी गुड इनफ. वैसे भी परसेंटाइल में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है, सिलेक्शन प्रोसीजर में करता है. एंड दे हैव नेवर कम अप विथ एनी डायरेक्ट नंबर. सो इट्स ओके. उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. ओके, last, I am done with what I wanted to say for today. okay, and I just want you people to have that fire ignited in you throughout these coming 35 days technically, and that भी अच्छा जाएगा. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बस हाँ, किसी ना किसी को रोज़ आपको बताना ही होगा that how far have you progressed. That means you need an acknowledgement buddy.